Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, Assalamu alaikum. This is your host, MB Sumru, Head of Department Computer Science from Zabis Larkana campus. I have a very special guest with me. I will introduce the guest later on, but let me tell you the reason of coming online. As you all are aware that today's we are living in the era of pandemic, and the pandemic is a global disease, and this disease has uh, great impacts on our lives, whether it is in education, it is in our, whether it is our business or any other field. It has some positive, but majority are the negative impacts. So that's the reason we are online. Otherwise, we have a tradition to conduct the career counseling sessions uh, physically at the different areas of the city and adjacent cities of the Sindh province. So, dear Facebook friends, let me introduce my today's guest, Mr. Aziz Rahman. Mr. Abdul Aziz. I'm not wrong, Mr. Abdul Thank Aziz. God. I'm sorry for that. Abdul Uh, Aziz is our graduate from Zabis Larkana campus. He did his bachelor's of science in computer science from Zabis Larkana campus. Then after he joined one organization for the purpose of job. So we listen and we will discuss many things with Mr. Abdul Aziz. I would like to ask Mr. Abdul Aziz to introduce himself in a nutshell from his secondary education, higher secondary education, and the bachelor's education, then little bit experience about the job. So Abdul Aziz. Thank you so much, sir. Thank you so much for having me here. Hello, everyone. This is Abdul Aziz. As Sir MB already have introduced me, being an alumni of Javis Larkana campus. So proud to be an alumni. And I have basically done my graduation from Javis Larkana, obviously, in BSc Computer Science, and have completed my matriculation with CSS College, Lardana, again, and done my intermediate from the Zavis IMC, Lardana. So there is somehow a twist that a commerce student boy, I've done my did my intermediate in commerce. Suddenly came into the engineering and science discipline. So there's a kind of story which will be explained in this session, inshallah. So after as soon as I was in the as soon as graduated, I joined the company employer, which was good in information security. Actually, its name is Trillium Information Security Systems. When I was in, I guess, last year, and I was doing my final year project. So my interviews have been conducted. I was going there and coming back in Karachi, actually. So that's it. And then I'm now working in the JS Bank head office as infrastructure and information system security. And that's it. Very nice introduction. A very traditional question from Abdul Aziz. Why you chose computer science? You had a lot of other options. What was the reason behind choosing computer science as a bachelor degree for you? Yeah, the reason is that I actually went for the BBA. To be honest, as I already said, I was in. I did my intermediate commerce from Commerce College. Sorry, in commerce in Zavis IMC. So discipline was changed. Certainly, it was mistakenly, I guess, chosen that I was trying to be trying to go for the BBA. लेकिन कुछ इस तरह से हुआ कि स्टार्टिंग से ही यानी कि अगर आप मैं आई थिंक आई वाज व्हेन आई वाज इन 8th standard, so I always tries to do something new in computers and using scripts and keys and everything that brings something challenging in the life. So it was something like the एक interest बना हुआ था कि भाई computers में ही जाना है. So when I again then I did some few courses and did diploma from different coaching centers, one or two, I guess.
So for the reason for 1 or 2 weeks that I was looking for something new. So then I heard that Zevis Larkana is providing, offering us the BSc degree, BSc program. So I thought, why shouldn't I go there? It's in the same city जहाँ पे हम रह रहे हैं, लड़कना में ही है. So it was a great opportunity work studying there, and always it's been a part friend life. So yeah, that's it. Okay, the first step was a mistake. So how do Yeah, you feel now after I getting degree and after enjoying a very reputable organization where you are working? Yes Bank has a brand name in country and abroad. So how you see? Are you satisfied that you have done good, or is there something missing still in your mind? कि भाई मुझे ये करना था, वो करना था. So what is your feelings now? Alhamdulillah, Alhamdulillah, I'm settled and I feel happy what I have chosen at that time. Mistakes happen, लेकिन यही है कि आप उन्हीं चीज़ों से अब सीखते हो. तो वो similar was the thing with me. Teachers guided me at the Zavis, and they a whole academy was there and taught me कि if I was having an issue कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, like when it comes to the again in computer science department or computer science, there this is a wide field. Nobody can easily get this. Where should a person go? Like इतनी आपकी स्पेशलाइजेशन हो गई है. सो वो वाली कंप्यूटर साइंस जो पहले हुआ करती थी, आज जो है वो एक छोटी से छोटी चीज को उठा ले तो वो दिस इज अ स्पेशलाइजेशन. So that's the reason. Alhamdulillah, I'm happy for the choice I have made. So yeah. अब्दुल अजीज, वेरी गुड आंसर. अच्छा, मुझे ये बताएं कि व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ज़ैबिस्ट एंड इन पर्टिकुलर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, और वो फुलफिल हुई कि अभी कुछ तशनगी बाकी है? वो तशनगी यारा कहते हैं ना एक शहर में. तो आपने बादशाह कहा कि मैं आया था एक्सीडेंटली, लेकिन शौक था आपको पहले से, तो यू ट्राई टू हैव एन एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस. उसके बाद आपने ज़ैबिस सेलेक्ट किया और कंप्यूटर साइंस में आपने एडमिशन ली. तो आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे देखने और सुनने वालों के लिए. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी? क्या पाया, क्या खोया? अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह से स्टार्ट किया था एक्सपेक्टेशंस लाइक एज आई टोल्ड के यानी कि वही चीज़ें कि हमने मुझे एक हर इंसान को व्हेन इट कम्स टू द टेक्नोलॉजी अ पर्सन ऑलवेज गो फॉर द न्यू थिंग. उस हमेशा एक न्यू चीज़ नई चीज़ की ही तलाश रहती है. सो इन टेक्नोलॉजी अगर आप अपडेटेड नहीं है, सो यू आर लाइक काइंड ऑफ डेड पर्सन. तो अपडेटेड रहना व्हेन इट कम्स टू द टेक्नोलॉजी, तो वही चीज़ मुझे एक काइंड ऑफ ईगर था कि मैं ज़ेबिस में आ जाऊँ फॉर द बीएससीएस डिग्री, क्योंकि डिप्लोमास तो मेरे काफ़ी हो चुके थे 1-2, और अपार्ट फ्रॉम दैट शॉर्ट कोर्सेज वगैरह एवरी जो है नॉर्मली जो कोर्सेज हो रहे होते हैं वो नॉर्मली इतनी हद तक वो जो है डिटेल्ड नहीं होते नॉर्मली. तो फाइनली आई चूज दी ज़ेबिस, एंड वो जो चीज़ें वहाँ पे सीखी, टीचर्स ने सिखाई. यू आर द फर्स्ट टीचर आई वाज इन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, द फर्स्ट क्लास आई रिमेंबर दैट. यस. सो काफ़ी एक अपॉर्चुनिटीज मुझे मिली वहाँ पे. रिसर्च, हाउ व्हाट इज रिसर्च कि आप किस तरह से करते हैं इन बीएससी, वो भी 4th लेवल सेमेस्टर का स्टूडेंट होके आपकी कोई पब्लिकेशन हो. So that's an honor. That's an honor being Zebestian. ग्रेट टू नो दैट. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल काफ़ी लोग मतलब मैं स्टूडेंट्स के हवाले से बात कर रहा हूँ कि उनके ज़हन में कंफ्यूजन होता है कि कौन सी डिग्री हमारे लिए मुनासिब रहेगी, जॉब्स मिलेंगी, या हमें क्या सेलेक्ट करना चाहिए फॉर करियर. तो आप माशाल्लाह ज़ैबिस से ग्रेजुएट हैं, आपकी कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, और फिर आपने अच्छी जॉब भी हंट कर ली. तो ज़रा मेरे इस सवाल के दो पहलू होंगे. एक तो आप अपने जो जूनियर्स हैं या वो देखने वाले जो अभी इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा, और दूसरा ये कि जब आपने डिग्री हाथ में लेके जब बाहर मार्केट में गए तो आपको क्या मुश्किलात आई, और वो मुश्किलात भी आप बता दीजिए ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए
थोड़ी सी रहनुमाई हो जाए। when it comes to डिग्री, अगर BSCS की ही लेट्स से डिग्री है तो उसमें नॉर्मली स्पेशलाइजेशंस होती हैं. some people go for the programming side यानी कि डेवलपिंग साइड, and few people go for the security side, few people go for the networking side. लेकिन I must say जो कि मैंने challenges कुछ फेस करे थे, मैं दोनों चीज़ों को मिक्स करूंगा क्योंकि एक यहाँ पे एक गोल अचीव होता है, वो दैट इज के आपकी जो नॉलेज होनी चाहिए वो फ्लैट नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई एक एक्सपर्टीज ना हो. इफ यू आर चूजिंग द डेवलपिंग देन दैट डजंट मीन कि आपको नेटवर्किंग नहीं आनी चाहिए, दैट डजंट मीन कि आपको सिक्योरिटी पे आपको फोकस ना हो. 3 आर दी मेन इम्पोर्टेंट. अगर आपको ये चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें आपके स्किल सेट में है, नॉलेज सेट में है, इट विल बी गुड. इजीली आपको जॉब हंटिंग भी हो जाएगी एंड यू विल गेट द कॉन्सेप्ट स्ट्रेट. सारी चीज़ें आपको जो है हर एक जो न्यू फ्रेशी होगा, जो ग्रेजुएट होगा, उसके लिए इजी हो जाएगी और जॉब हंट करना भी इजी हो जाएगा. व्हेन इट कम्स टू मी, मैंने क्योंकि स्टार्टिंग में ही ये डिसाइड कर लिया था कि मैं सिक्योरिटी को ही प्रेफर करूँगा, तो ये चीज़ हमेशा पहले से ही डिसाइड होनी चाहिए कि भाई आप कौन सी स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जितनी भी स्पेशलाइजेशन है, डेवलपमेंट हो गई, नेटवर्किंग हो गई, उनकी नॉलेज का होना भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे मार्केट में अभी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, डायनामिक चीज़ें चल रही हैं. आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि आप अगर प्रोग्रामिंग में आपकी स्किल्स हैं तो यू विल बी स्टिक देयर. सो डायनामिक चीज़ें चल रही हैं. एवरीवन शुड नो ऑल द 3 फील्ड्स, ऑल द 3 मेजर्स, व्हाटएवर. ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा उनकी डेप्थ में जाएं. So this is it. And when it comes to me, मैंने जब सिक्योरिटी के लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में जब मैंने इंटरव्यूज दिए, मैंने ऑलमोस्ट 3 to 4 इंटरव्यूज दिए थे जब मैं फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में भी था, when I was in FIP and my undergraduate. So similarly they said कि आपने अभी तक ग्रेजुएशन नहीं करी, लेकिन जहाँ तक उन्होंने फाइनल करा था तो दैट मीन्स कि उन ग्रेजुएशन तो एक मैटर करती है, आपका स्किल सेट नंबर 1, और उसके साथ साथ ही तीनों स्पेशलाइजेशन मैटर करती है फॉर द जॉब पर्पस. अच्छा अब्दुल अजीज, चलें ये चीज़ें तो होती रहेंगी. मुझे ये बताएं कि आपको एज एन ग्रेजुएट ये मुश्किलात तो आपने बताई, हालांकि ये मुश्किलात नहीं है, दीज आर द अपॉर्चुनिटीज़ कि आप फाइनल ईयर में थे और यू अप्लाइड फॉर सर्टेन जॉब्स और उन लोगों ने आपको इंटरव्यू किया तो नेचुरली दे आस्क यू कि भाई आपके पास डिग्री नहीं है लेकिन आपके पास बहुत अच्छी स्किल्स है. तो आर यू सेटिस्फाइड कि जो कोर्सेज यहाँ पढ़ाए जाते हैं जिस क्वालिटी में, तो उसमें आपकी क्या इनपुट होगी? अच्छा, बुक्स नॉर्मली अगर आप नॉर्मली स्टूडेंट्स को इस तरह से भी होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि भाई हम सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे. व्हेन इट कम्स टू द बैचलर लेवल, अगर आप थ्योरी को अच्छे से जानते हैं, थ्योरी आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से चीज़ों के जो बैकग्राउंड हैं, उनकी हिस्ट्रीज भी इनफैक्ट उनकी अगर आपको आइडिया अच्छा है, सो इट विल बी ईजी फॉर एनी पर्सन, एनी स्टूडेंट टू गेट द कॉन्सेप्ट स्ट्रेट इन एनी डोमेन. अगर स्पेसिफिक डोमेन हो या उससे जनरल हो, लेकिन जब बात आती है आपकी प्रैक्टिकल की और थ्योरेटिकल की, तो प्रैक्टिकल चीज़ें आपकी मार्केट पे डिपेंड करती हैं. 2 चीज़ें थोड़ी डिफर कर सकती हैं, लेकिन एट द पॉइंट वो कहीं ना कहीं पे वो सेम ही स्टिक रही होती हैं. सो कोई भी स्टूडेंट विल गेट जो है आइडिया, जो है कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल उसको इजीली समझ सकता है. तो बैकएंड पे चीज़ें विल रिमेन सेम. एंड व्हेन इट कम्स टू दी डायनामिक, जो आपकी प्रैक्टिकल की बातें चल रही होती हैं, जैसे अभी काफ़ी आप देखेंगे सॉल्यूशंस आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड हो गई है, कोई उसमें मुश्किल नहीं है. जितनी टेक्नोलॉजी ज़्यादा आ रही हैं उतनी उनमें ईज भी आ रही है. उसके साथ साथ अभी कोविड की सिचुएशन दो के काइंड ऑफ पेंडेमिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें तो आई गेस सबको पता चल गया कि आईटी का रोल क्या है इन बिजनेस एंड इन एवरी फील्ड. बल्कि मैं समझता हूँ अजीज, मैं अगर आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊं कि इस पैंडेमिक के एरा ने ये साबित कर दिया है कि आईटी हमें हमारे लिए कितनी जरूरत है, और विदाउट आईटी वी कैन नॉट सर्वाइव. और आईटी के लिए जाहिर वी नीड्स स्किल्ड पीपल, स्किल्ड पर्सोनेल,
और वो बंदे जो है वो अब ज़्यादा उनके लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ है। कंप्यूटर साइंस की जो डिग्री है वो दैट इज एन मदर डिग्री ऑफ ऑल अदर डिग्रीज लाइक बीएस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो आपको तो अब ज़्यादा इस चीज़ का एहसास हो गया होगा कि योर डिसीजन वाज राइट। एंड अभी जो एरा है, आने वाले जो दिन है, उसमें इस डिग्री की और ज़्यादा वैल्यू होगी, नो डाउट। स्टूडेंट्स को मेहनत ज़्यादा करनी होगी। अच्छा, आपके बहुत सारे असातिज़ा और दोस्त भी ये लाइव शो देख रहे हैं, तो वो भी आपको विश करें, नाइस टू सी यू। अब मैं इनके नाम थैंक यू लूंगा सो तो मच, जाहिर है। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, एक आपके दोस्त ने पूछा है कि कोई यादगार वाकया सुनाए, कोई जो आपको कभी नहीं भूल पाए हों ज़ैबिस में जब आप बीएस कर रहे थे। Yes, I think it's the first publication I had in Zevis, and जिसकी वजह से मुझे पार्टी पे एक लंबी देनी पड़ी थी। So दोस्तों को yeah, देनी पड़ी थी, ये बताए। yeah, exactly. So first publication when I was, I guess, fourth or fifth semester. तो thanks to Zevis again, एक अच्छा एक वक्त गुजरा वहाँ पे, और it's always been a part of life, truly. गुड। और ये क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग होती हैं चीज़ें, मेमोरीज जो होती हैं, मैंने क्वेश्चन पाया तो इसीलिए मैंने आपसे पूछ भी लिया कि ये वो चीज़ें होती हैं कि जब आप स्टडी करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टडीज़ करते हैं, और उसमें प्रेशर्स भी और चैलेंजेस भी होते हैं, तो उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपको रिलैक्स कर देती हैं, और वो हमेशा के लिए आपकी मेमोरी बन जाती है। आपके दोस्तों के साथ उठना बैठना, ग्रुप स्टडीज़ करना, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करना, नेचुरली ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई होंगी। अच्छा अजीज, मुझे ये बताइए कि कंप्यूटर साइंस की डिग्री के बाद जब कोई ग्रेजुएट जाना चाहता है मार्केट में किसी जॉब के लिए, तो उसको नेसेसरली क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए आपकी नज़र में? क्योंकि आपने माशाल्लाह ये इस प्रोसेस से आप गुजर के आए, तो हाउ यू सी कि वन ग्रेजुएट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट शुड हैव दीज स्किल्स, कि ये चीज़ें उनके पास होनी चाहिए? नंबर वन, देर आर बेसिकली तो बहुत ज़्यादा ही हैं, लेकिन जो चीज़ें डिपेंड करती हैं वो डिपेंड्स ऑन द स्पेशलाइजेशन। नंबर वन के अगर जो स्टूडेंट है, फर्स्टली तो उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग ही वो सारी चीज़ों को पढ़े। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि डायनामिक मार्केट होती जा रही है, तो थ्योरेटिकली आप जो कुछ पढ़ते हो इन 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 यूनिवर्सिटीज़, जो लेक्चर्स में हमें टीचर्स नॉर्मली पढ़ा रहे होते हैं, अनडाउटेडली वो एक हम वो नाकाबिले एक जो है एक डिफीट जो है ना, कोई भी उस चीज़ को नहीं कर सकता कि लाइक अब लेक्चर्स में उनकी लेक्चर्स सुनने के बाद या उन लेक्चर्स को फॉलो लेने के बाद आपका एक बैकग्राउंड क्लियर हो जाता है, हिस्ट्री की सारी क्लियर हो जाती है, एज ऑलरेडी सेड। उसके साथ साथ जब आप व्हेन इट कम्स टू द मार्केट, स्टूडेंट जब भी पास आउट होकर न्यूली आता है, तो उसके लिए बेसिक चीज़ें, लेट से अगर कोई अप्लाई करना चाहता है फॉर द सिक्योरिटी डोमेन, इन द सिक्योरिटी डोमेन, तो उसको एटलीस्ट बेसिक चीज़ें बताओ। और वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते, कोई भी एम्प्लॉयर आपसे हाई एंड की कोई नॉलेज वगैरह या नॉलेज सेट भी जो है एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, क्योंकि यू आर द फ्रेश। तो आप जब फ्रेश ही होते हो, फ्रेश ग्रेजुएट होते हो, लेकिन तो उसके लिए कम से कम आपकी बेसिक्स पक्की होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, एग्जैक्टली तभी वो एग्जैक्टली आपको किसी ऊंचे प्रोजेक्ट पे बिठाएगा, वरना कहेगा ये चीजें जो है ना ये समझ नहीं पाएगा। तो बिल्कुल उस कंटेक्स्ट में क्या एडवाइस करेंगे अपने ग्रेजुएट्स को, ओवरऑल बिल्कुल। जो भी देख रहे हैं आप? इसमें यह है कि जो बेसिक जो चीज़ें हैं, डू फॉलो द कोर्स वर्क, डू फॉलो योर टीचर्स, आस्क देम द क्यूरीज, वॉट एवर द क्यूरीज आर। हम तो, मुझे याद है मैं नॉर्मली टीचर्स को तो तंग कर रहा था फॉर द क्यूरीज, ब्रिंगिंग डिफरेंट क्वेश्चंस। तो अच्छी बात है। इनफैक्ट वो हमें टीचर्स भी एक काइंड ऑफ मोटिवेट ही कर रहे होते हैं हर दफ़ा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो थिंग इज के बेसिक बेस आपका फाउंडेशन जो है वो एक अच्छा होना चाहिए। आई सेड रिमेंबर के मैंने कॉमर्स ग्रुप से मैं डाइवर्ट हुआ था एक इंजीनियरिंग में, तो दैट वाज द चेंजिंग पार्ट, एंड मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डिफिकल्टीज हुई थी न्यूमेरिक्स में, नंबर्स में। सो आई वाज लाइक कि नंबर्स को अब मैं किस तरह से इनको डील करूँ। एंड कंप्यूटर साइंस एंड व्हेन इट कम्स टू दी नेटवर्क्स, आपकी नंबर्स की गेम ज़्यादा होती है। although कि अभी टेक्नोलॉजीज ज़्यादा हाई हो गई हैं, इन्हांस्ड हो गई हैं। सो यस, इट इज़ के बंदा जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएट हो, फ्रेश ही हो,
he or she must have the basic knowledge, and जिस पोजीशन के लिए जा रहे हैं उसके लिए he has enough knowledge, यानी कि the best he can or she can, तो वो चीज़ें ज़रूरी हैं for the interview, ठीक है। फर्स्ट impressions भी created हैं, पर्सनल ग्रूमिंग भी एक इसका एक अच्छा सा पार्ट है। अच्छा जी, there are certain other messages for you. हरीश काटवानी आपके लिए लिखते हैं कि you are dynamic, तो आप उनको थैंक्स कर रहे हैं। और समी जागरानी है, सर जुनैद शाह साहब भी आपको विश करें, कासिम अली शाह साहब विश करें, और आपके बाकी फ्रेंड्स हैं। अच्छा अजीज, मुझे ये बताएं, यस सर, ओके, जुनैद शाह कहते हैं गुड टू सी alumni always excelling in their field. Honored sir, honored, thank you so much for it. अच्छा, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है, हो सकता है मेरी मेमोरी इतनी खराब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, कि आपका फाइनल प्रोजेक्ट का सुपरवाइजर भी मैं था। तो मुझे स्टिल आई रिमेम्बर कि मैं अपने ये देखने वालों को बता रहा हूँ कि एक स्कोप होता है, एक लिमिटेशन होती है कि आपने फाइनल ईयर में ये चीज़ें इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है। और मुझे याद है कि डिग्री अनकरीब आ रही थी, लेकिन मैंने अजीज को कहा कि इसमें ये चीज़ें डालेंगे तो और खूबसूरत बन जाएगा, ये चीज़ें डालें। और ही यूज्ड टू कम विजिट माय ऑफिस ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे कि सर, आखिर में कहा सर अब कितनी डालनी है। तो दैट वाज इन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट, कंप्लीट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आपने बताया था, और मुझे वहीं से अंदाजा लग गया था कि इस किस्म के बच्चे जो हैं वो अपना मकाम खुद ढूंढते हैं और उसी जगह पे पहुंचते हैं, अल्लाह ताला इनकी मदद भी करता है। अच्छा अजीज, अपने ग्रेजुएट्स को आपने पैगाम तो दे दिया, जो न्यू कमर्स हैं जो अभी प्लानिंग कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस फील्ड में जाने के लिए, और उनके जहन में हो सकता है कि दे हैव सर्टेन क्वेश्चंस इन देयर माइंड, तो आप मुझे बताइए उनके लिए क्या आप पैगाम देंगे, उनकी क्या रहनुमाई करेंगे? आई मस्ट से कि जेवियर्स लाड़काना कैंपस मैं भी काइंड ऑफ एग्जांपल हूँ यहाँ पे एज एल्यूमनाई। तो मैंने एक स्टार्ट में तो यही सोचा था कि भाई मैं कराची जाता हूँ एंड व्हाई शुडंट आई गो फॉर द आईबीए सक्खर, आईबीए कराची एंड एनी अदर इंस्टीट्यूशन, व्हाई शुडंट आई गो फॉर द फास्ट फॉर द बैचलर्स। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द जो चीज़ आपके पास जो एक क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है आपके ही शहर में, देन व्हाई शुड यू गो एनीवेयर। और जहाँ तक बात आती है कंप्यूटर साइंस की, तो अभी हर किसी को पता है, एवरीवन नोज इट नाउ कि होल बिजनेस, होल वर्ल्ड, in fact I can say the economy is everything relies on the IT. So undoubtedly that's the truth. So I would say कि everyone should join, at least अगर join नहीं कर रहे तो उनको जानना चाहिए कि कंप्यूटर साइंस है क्या बेसिकली, जो भी न्यू कॉमर्स I must say. एंड अगर वो लोकल है, लोकल दैट मीन्स के दे आर लिविंग इन द लाड़काना सिटी और लिविंग एक्सटर्नली इन समवेयर एल्स, समवेयर इन सम अदर सिटी, सो आई मस्ट से जेवियर्स लाड़काना इज द बेस्ट चॉइस। एंड जो क्वालिटी एजुकेशन आपकी रिक्वायरमेंट होती है, हर स्टूडेंट की यही ख्वाहिश होती है कि मुझे क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। सो व्हेन इट कम्स टू द लाड़काना, और जब जेवियर्स आपको ये चीज़ दे रहा है तो व्हाई शुडंट गो एनीवेयर एल्स। That's it. That's great message for the newcomers or the people who are looking for the admission in computer science. अजीज, सिलेबस जो हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, बीइंग अ टीचर मैंने तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखा है, तो हाउ यू फाउंड कि वो जो सिलेबस जो आप लोगों ने पढ़ा था वो मार्केट में उसकी यकीनन जो नीड है उस हिसाब से हमें बताइए कि आपको कैसे लगा वो सिलेबस, अप टू डेट लगा, और उसमें जो चीज़ें पढ़ाई गई वो मार्केट में कारआमद हैं या और इसको इम्प्रूव करना चाहिए? इससे जनरल क्वेश्चन। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू द सिलेबस, आपकी जो नॉर्मली सिलेबस तो एचईसी की तरफ से भी वो रिकमेंडेड होता है नॉर्मली। तो एचईसी डेफिनेटली एनालिसिस वगैरह करते हैं, मार्केट को अच्छे से एक इंस्पेक्शन भी होती है, एनालिसिस वगैरह होती है। दो के पाकिस्तान में थोड़ा गैप मैं देख रहा होता हूँ कि बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्रीज, तो ये थोड़ा गैप है हम जो कि एक ब्रिज बनना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर जितनी ये क्लोजली काम करेंगे उतना अच्छा है, तो इंस्टीट्यूशंस वुड रियली गेट टू नो
कि अगर कहीं पे उनकी लैकिंग है, लैकिंग इन सेंस ऑफ के कोई ऐसा टॉपिक हो गया, कोई ऐसी ऐसी नई चीज़ जो टेक्नोलॉजी आ गई है कि उन चीज़ों को भी फिर वो हाईलाइट करते थे, तो वो एक गैप फुलफिल हो जाता है। व्हेन इट कम्स टू अगर आप अभी के लिए कंप्यूटर साइंस देखेंगे तो वो एक मदर फील्ड ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स है, ऑल फील्ड्स है इनफैक्ट। ट्रू तो जो ट्रू चीज़ें अभी जो चीज़ें अभी जो जिस तरह से चल रही हैं, जो बेस हमें दे रही हैं, नॉर्मली एक न्यू कमर जो होगा उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो न्यूली सारी चीज़ों को गेन करे, एक नॉलेज सेट अपना बनाए। फिर उस नॉलेज सेट में अपनी डिसीजन मेकिंग करे। ही हैज़ टू गो फॉर द वेबिनार्स, डिफरेंट वेबिनार्स अटेंड करे, डिफरेंट स्पीकिंग सेशंस अटेंड करे, ही विल गेट टू नो द न्यू थिंग्स आल्सो। तो वो काइंड ऑफ जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम यूज़ कर रहे होते हैं कि आपको एक चीज़ हम दे रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, इंस्टीट्यूशन विल फीड यू, विल प्रोवाइड यू द एजुकेशन, विल प्रोवाइड यू द एवरी डिटेल, लेकिन उसके साथ-साथ स्टूडेंट कितना रोल प्ले कर रहा है, दैट मैटर्स। नई चीज़ें आ ट्रू रही हैं। यस। ट्रू बिल्कुल ट्रू। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि काफ़ी लोगों का ये होता है कि शायद यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस जो है वो बिल्कुल लो है, तो ज़ैबिस की एक अपनी बोर्ड ऑफ एकेडमिक काउंसिल है, बोर्ड ऑफ फैकल्टी। I'm interrupting you, sorry sir. लेकिन that was the mind thinking of my as well कि भाई यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं और the outline, the course outlines, the things, the subjects are different comparatively to the in Karachi and other institutes. लेकिन सेम है, सिमिलर है। इवन दो मैं अभी मास्टर्स भी कर रहा हूँ फ्रॉम फास्ट न्यूज़, तो मैंने कोई एज सच बिग चेंज नहीं देखा। सिमिलर एक छोटे नॉर्मल चेंजेस आते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन दी एक स्केल ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड सेकेंडली द टाइमिंग मैटर्स कि उस वक्त क्या था मेरी ग्रेजुएशन के टाइम पे, अभी क्या हुआ। सो दी बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो ये चीज़ मैटर करती है, लेकिन अगर देखा जाए तो फॉर दी बिगिनर्स, फॉर दी जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए तो परफेक्ट है, परफेक्शन है। ट्रू। और आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड एंड हैप्पी टू नो दैट माशाल्लाह। अच्छा अजीज, क्योंकि कंप्यूटर साइंस एक वास्ट फील्ड है, इट्स एन इमर्जिंग फील्ड एंड यू हैव सो मेनी ऑप्शंस फॉर करियर। फॉर एग्जांपल आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसमें बना सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, डेटाबेस की तरफ भी आप जा सकते हैं, नेटवर्क स्पेशली द सिक्योरिटी ऑफ द नेटवर्क। आजकल जो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ई कॉमर्स, ई एजुकेशन, तो यहाँ भी सिक्योरिटीज़ के बहुत इशू हैं। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपका वेट कर रही हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें कंप्यूटर साइंस की कंजप्शन हो रही है, ग्रेजुएट्स वहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आप मार्केट में हैं तो ज़्यादातर फोकस बच्चों को कौन सी फील्ड्स में कंप्यूटर साइंस की वो कौन सी एरियाज में है जिसमें वो अपना फ्यूचर या कैरियर जो है वो अच्छा बना सके। अच्छा, द क्वेश्चन द आंसर इज के फर्स्टली तो प्रोग्रामिंग है, नो डाउट। प्रोग्रामिंग अगर हम देखें तो प्रोग्रामिंग की टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं। प्रोग्रामिंग, देन कम्स द सिक्योरिटी एंड रिमेनिंग जो चीज़ें हैं तो इन दोनों में ही आ जाती हैं। जैसे नेटवर्क आ गया, वो तो सिक्योरिटी और प्रोग्रामिंग में अभी की जो जैसे मैंने बताया कि डायनेमिक सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इट आल्सो ऑटोमेटिकली कवर्स इन दैट। सो प्रोग्रामिंग को ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं। सेकेंडली कम्स दिस, तो अगर ऐसा डोमेन है यानी कि अगर कर रहा और उसका इंटरेस्ट नहीं है एंड द पर्सन द स्टूडेंट वांट्स टू गो फॉर द स्टडी फॉर द सिक्योरिटी डोमेन, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है एक वाइड फील्ड है। इनफैक्ट इस कोविड की सिचुएशन में सिक्योरिटी एक जो डोमेन है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की खातिर एक काइंड ऑफ एक बहुत ही मेन रोल प्ले कर रहा होता है। तो मेरी खुद अपनी एनालिसिस होती हैं, अगर मैं काम कर रहा होता हूँ तो कम से कम 20 से 25 नॉर्मली अटैक्स हमें डेली जो है रिसीव हो रहे होते हैं। सो दीज सच अटैक्स उनको एनालिसिस वगैरह कर, सो 20 एक मतलब कि आपको एवरेज बता रहा हूँ, कभी इससे ज़्यादा भी बूस्ट हो जाती हैं। सो तो सिक्योरिटी इज इमर्जिंग फील्ड। अगर कोई प्रोग्रामिंग करना चाहता है, सिक्योरिटी में लेना चाहता है, सो there's something to the next level. There are a lot of opportunities. A lot of opportunities.
नो डाउट। तो फेसबुक व्यूअर्स और मेरे स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज्वाइन किया हुआ है, उन्होंने आपको विश कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे भी मैसेज आ रहे हैं। तो मैं माजरत चाहूँगा अगर किसी का नाम, क्योंकि ये दिस इज़ अ वंडरफुल डिस्कशन, और मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादातर हम अजीज़ से सुने। आपके मैसेजेस का बहुत शुक्रिया। अजीज़, अगर आपके पास कोई मैसेज आया है और थैंक यू सो मच आपकी सर। there is a question from Hina Abbasi. Sir, when we are applying for any job after graduating, does institute matter or they just focus on skills? They just completely focus on skills. टारगेटेड के आपका इंस्टीट्यूट इतना मैटर करता है, लेकिन अगर बात आती है आपके इंस्टीट्यूट की अगेन, तो उसमें वही चीज़ें आपको क्वालिटी एजुकेशन की बात आ जाती है। तो वही चीज़ के अगर स्टार्टिंग में इफ़ यू आर स्टडिंग इन जेबीएस लाड़काना कैंपस, और इवन तो आप किसी और कैंपस में भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, लेकिन अगेन अगर व्हेन यू आर लोकल, जो लोकल सिटीजन हो, वो लाड़काना कैंपस आपको इस तरह से अपॉर्चुनिटी दे रहा है बीएस कंप्यूटर साइंस की, तो और क्या चाहिए। लेकिन व्हेन इट्स जस्ट कंप्लीटली फोकस्ड ऑन स्किल्स, आपकी स्किल सेट को देखा जाएगा, आपको क्या चीज़ें आती हैं, मेनली फोकस उस पर होगा। इवन तो काफ़ी टाइम के बाद ही आपके जॉब के स्टार्ट होने के बाद ही आपसे फिर वो सारी चीज़ें, डिग्रीज वगैरह, वो सारी चीज़ें फिर वो रिकॉर्ड होती हैं। तो दे जस्ट फोकस ऑन स्किल्स। आपके डिफरेंट इंटरव्यूज होते हैं, कंडक्ट होते हैं, 2-3 लेवल के इंटरव्यूज होते हैं, अपर पोजीशंस, लोअर पोजीशन, ऑल आर इन्वॉल्वड इन दी कंडक्टिंग इंटरव्यूज फॉर दी स्किल्स, एवेल्यूएट करते हैं बाकायदा से। सो यस, जो है स्किल्स जो है वो ज़्यादा मैटर करते हैं। अच्छा अजीज, इसको मैं जरा हिना अब्बासी का जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ। शायद उनका पूछना ये भी था कि सिर्फ डिग्री के हद तक बात है या स्किल्स के हद तक बात है, या इंस्टीट्यूट का ब्रांड प्लस स्किल्स और डिग्री, ये तीनों जो है अगर आपके पास हो तो नेचुरली यू आर द सक्सेसफुल ग्रेजुएट। तो स्किल्स तो बगैर मेहनत के नहीं मिलेंगे, और मेहनत बगैर इन्वायरमेंट के नहीं मिलेगी, और जाबिस नाम ही इन्वायरमेंट का है। अगर हम ब्रांड का क्लेम करते हैं तो उसमें इन्वायरमेंट, लॉट ऑफ असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, और जाबिस लाड़काना कैंपस में तो आपको पता है कि ईयरली हम 2 दफा सॉफ्टवेयर एग्जीबिशन करते हैं। यस। और बच्चों को हर सेमेस्टर में हर 4-5 माह के बाद एक मौका देते हैं कि ठीक है आपने गलत किया है, ठीक है आप आ जाएं, लोगों को इंटरेक्ट करें, लोगों से मिले, ताकि आपको पता चले कि आपने क्या किया है, और उसके बाद आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगी, और आपको जो फीचर का एम्प्लॉयर है या फीचर का जो बंदा आपसे प्रोजेक्ट लेगा उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है वो आपको पता चलेगी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक तो क्यूरी भी ले लूँ, ऐसा जो क्यों पूछ रहा है कि जीपीए मैटर करती है या नहीं करती जॉब के लिए? जॉब के लिए जीपीए क्वेश्चन फ्रॉम एवरी स्टूडेंट। सो अभी आए हैं आप, तो मेहरबानी करके इनको बताएं कि जीपीए मैटर करती है या नहीं करती। ऐसा जो क्यों जीपीए मैटर इतना नहीं करती। जीपीए अगर आपकी अच्छी है सो इट्स गुड, लेकिन वो ये होता है कि प्रायोरिटी एक पॉइंट बन जाता है कि जिनकी अच्छी, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, तो सम ऑर्गेनाइजेशंस आउटसोर्स अदर कंपनीज के भाई हमें हायर करके दें, जो है स्टूडेंट्स जो हैं हमें एम्प्लॉइज जो हैं वो हायर करके दें। सो दे ऑफनली लुक फॉर दी जीपीए और सीजीपीए। लेकिन अगेन अगर आपके पास स्किल सेट अच्छा है, नॉलेज सेट अच्छा है, दैट्स इट। ओके अजीज, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन भी किया है, वो विश भी करते हैं, लेकिन चूँकि टाइम की भी थोड़ी सी कांस्टेंट होती है, आपको आपकी बड़ी मेहरबानी, क्योंकि मुझे पता है कि यू आर वेरी बिजी और आपने स्पेशली ये टाइम डेडिकेट किया हमारे लिए। तो आखिर में मैं आपसे कोई मैसेज लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैसेज आपने 2-3 दफा दिए हैं बच्चों के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए भी और हमारे न्यू कमर्स के लिए भी, लेकिन जनरल मैसेज फॉर दोज हु लव कंप्यूटर साइंस डिग्री। अच्छा, a message would be कि always be in touch with alumni के साथ आप टच में रहें, क्योंकि वो मार्केट में काम कर रहे हैं। they will help you to get the job as well। आपकी तो स्किल सेट तो है ही, लेकिन अगेन वो एक नॉर्मली एक वो आपको कॉन्सेप्ट्स वो क्लियर करना कि एक किस टाइप की जॉब आप जो है वो प्रेफर करें या चूज करें, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स। और इसके साथ साथ वो मार्केट का एक टच भी हो जाता है
कि किस टाइप की मार्केट आजकल चल रही है, तो यानी कि यू विल गेट द अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देयर। सो अलुमिनाइज के साथ अब जो है एक हमेशा विदाउट एनी इंटरप्शन वी आर देयर, आप हमसे कोऑर्डिनेट कर लिया करें रिगार्डिंग एनीथिंग, कोई चीज़ वो अपने पूछनी हो, कोई चीज़ आपकी कोई क्यूरी हो, एज वेल एज देयर आप कोई प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करें। जैसे अभी पेंडेमिक, ये तो पेंडेमिक सिचुएशन है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो है डिफरेंट लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, LMSs हैं, आप इनको यूज़ करें। आप अपनी जो स्टडी है इन दी यूनिवर्सिटी वो भी कंटिन्यू रखें, उसके साथ साथ वेबिनार्स अटेंड करें। वेबिनार्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ट्रूली स्पीकिंग। आपके वेबिनार्स, आपके जितने भी इवेंट्स वगैरह होते हैं इन कंप्यूटर साइंस स्पेसिफिकली, क्योंकि वो आपको अपडेटेड चीज़ें देते हैं। जो चीज़ मार्केट में आई होगी, जो प्रोडक्ट न्यू आई होगी, तो दे विल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन विद यू, दे विल शेयर इन्फॉर्मेशन विद यू, दे फिर इंटेलिजेंस वगैरह जो भी चीज़ें आपकी आ रही हैं वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। तो नंबर 2 ये हो गई। नंबर 3, उसके साथ लिंक्डइन की प्रोफाइल्स बनाते रहें। आई वुड सजेस्ट कि लिंक्डइन पे आ जाएं सारे एज अ प्रोफेशनल। जो नॉलेज सेट है, आई मस्ट शेयर दिस के मेरा जो नॉलेज सेट था, जो मैं कोशिश करता था कि नॉलेज मुझे गेन हो डिफरेंट ग्रुप से, वो मैं फेसबुक को नंबर 1 प्रायोरिटी दे रहा था एट दैट टाइम। अभी मैं लिंक्डइन को दे रहा हूँ। तो फेसबुक के भी काफ़ी इतने अच्छे ज़बरदस्त ग्रुप्स बने हुए हैं, डिपेंडिंग ऑन योर स्पेशलाइजेशन आप उसमें जाएँ, डिसिप्लिन जो भी आपका है। अगर कंप्यूटर साइंस में आपका इंटरेस्ट नेटवर्क्स में है, प्रोग्रामिंग में है, सिक्योरिटी में है, फेसबुक पे बेतहाशा आपके पास ग्रुप्स हैं, ज्वाइन कर लें, उनके साथ क्यूरी करें। एवरीवन विल बी देयर, आपको एक सपोर्ट भी करेंगे। अगर आपको क्यूरी है तो दे विल हेल्प यू आउट इन दैट। और आपके साथ साथ लिंक्डइन भी है, लिंक्डइन का प्रोफाइल आपको हेल्प करेगा जॉब हंटिंग में, एंड स्पेशली फॉर द IT पीपल। आपके लिए फ़ायदेमंद इस तरह से है लिंक्डइन के, वहाँ पे आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं नॉर्मली, सो इट विल हेल्प यू आउट इन मैनी फॉर्म्स। यस। ओके अजीज, और भी आपके व्यूअर्स हैं, इमरान खोखर साहब हैं, और उसका भी शुक्रिया उनके मैसेज का। सुभाष कुमार हैं, वो कहते हैं कि मैं ज़ेबिस में पढ़ता तो नहीं हूँ, मेरे कुछ रिलेटिव्स पढ़ते हैं, बट आई लाइक ज़ेबिस। सुभाष, थैंक यू वेरी मच। और दिस इज आल्सो योर इंस्टीट्यूशन। ये जो हमारे बच्चे हैं जहाँ पे देख रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं। ये भी ज़ेबिस की इन प्रोसेस से गुजरे हैं, जहाँ पे आपका रिलेटिव भी पढ़ा होगा, उसको भी ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस में होंगी। तो अजीज़, टाइम का बहुत कांस्टेंट है, इसलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जाने से पहले बैक एंड पे जो हमें टेक्निकल सपोर्ट दे रहे थे, दो आई एम अ वेरी टेक्निकल पर्सन, लेकिन क्योंकि हमारी एक ज़ेबिस की पूरी IT टीम है, और डॉक्टर जाहिदा अबलू जो हेड ऑफ कैंपस है, शी हैज़ फॉर्मुलेटेड सर्टेन टीम्स एंड कमिटीज टू लुक आफ्टर द थिंग्स। उसके लिए सैयद कासिम अली शाह साहब बैक एंड पे हैं, और वो कंट्रोल रूम में है, ऐसा समझे कि कंट्रोल रूम पे हैं, और ये सारी कन्वर्सेशन वहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तो उनका भी शुक्रिया, और जो लोग इस पूरी ब्रॉडकास्टिंग में हमारे साथ हैं, उन सब लोगों का शुक्रिया। अजीज, लव टू सी यू अगेन। जब भी हम थैंक यू सो मच सर फॉर providing me the opportunity to share my experience and everything. Thank you so much for. अच्छा, इसके साथ साथ अजीज मैं ये भी बताता चलूं कि हमारे अभी सेशंस में एडमिशंस जो है वो ओपन है फॉल के सेशन के लिए। BS कंप्यूटर साइंस में है, BS अकाउंट्स फाइनेंस में है, BBA में एडमिशंस हैं। इसके अलावा हमारे पास MBA है, और अपकमिंग सेमेस्टर में इंशाल्लाह वी आर लुकिंग फॉर सम अदर प्रोग्राम्स। सो कीप इन टच विद योर इंस्टीट्यूशन। Hopefully masters in computer science will be there. श्योर, इंशाल्लाह। और इसके साथ आई वुड लाइक टू से बाय बाय टू एवरीबॉडी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज। Thank you so much sir, thank you so much everyone, thank you so much. Allah Hafiz.